Namaskar and pranam to all my friends. Again, I am coming back to my channel Osit Saricomania. Today, I will discuss deflationary gap for deficient demand in macroeconomics. In my previous video, already I have discussed inflationary gap or excess demand in macroeconomics. It is the most important part of Keynesian theory. So, my friends, please comment me, like me, and subscribe my video so that I will bring some good videos in future. So आज ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा, अभी स्टार्ट करूँगा. लेट स्टार्ट. डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. First one, what is deficient demand? It refers to a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level in the economy. Aggregate supply is in full employment level. Plant production, it is in full employment level, but plant expenditure is less than that. Alternatively, when plant expenditure is less than the plant production is at full employment level, then deficient demand is arised in the economy. जब एग्रीगेट सप्लाई जो प्लांट प्रोडक्शन है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, इसका अर्थ है जो लेवल ऑफ आउटपुट वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है, जो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, जो प्लांट लेवल ऑफ आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है, बट जो प्लांट एक्सपेंडिचर है वो उससे कम है. इसी समय डेफिशिएंट डिमांड अराइज होता है. सो it refers to a situation when aggregate demand or plant expenditure is falls short of aggregate supply or plant production corresponding to full employment level in the economy. जब plant expenditure plant production से कम होता है मगर plant production वो full employment level पर है, desired level of output full employment level पर है, बट एग्रीगेट डिमांड उससे कम है. क्लियर? इट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप. इससे क्या होता है, एक डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है. तो डिफ्लेशनरी गैप को हम देखेंगे डायग्राम में. इन सब्सिक्वेंट पार्ट आई विल डिस्कस डिफ्लेशनरी गैप इन डायग्राम. सो डिफ्लेशनरी गैप हमको दो एग्रीगेट डिमांड देखना है कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है. It means in case of deflationary gap, we must detect two type of aggregate demand. One is actual and another one is aggregate demand required to maintain full employment level. So it is the gap by which actual aggregate demand is less than or falls short of required aggregate demand to maintain full employment equilibrium. क्लियर? सो जो डिफ्लेशनरी गैप होता है उसमें क्या है, मैं दो प्रकार का एग्रीगेट डिमांड बोला. जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, वो जो एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट को रीच करने के लिए उससे कम होगा. जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट को रीच करने के लिए उससे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम होगा. तो एक गैप अराइज होता है, उसी को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे. इट मीन्स एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड is less than or falls short of aggregate demand required to maintain full employment equilibrium. You see the diagram. In diagram, x-axis represents income, output, employment, and y-axis represents AD and AS. You see in the diagram, full employment equilibrium is point E. Full employment equilibrium is point E, and corresponding level of फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज OIF. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितना है और एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कितना होगा. तो हियर यू सी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज GYF because actual aggregate demand curve is AD0
actual already I have mentioned within the bracket. Actual aggregate demand curve is AD0, full employment level demand curve is AD. जो actual demand curve is below the full employment demand curve. From this we have detected that aggregate demand required to maintain full employment equilibrium is EYF. Aggregate demand required to maintain full employment equilibrium is EYF and actual demand is GYF. So actual aggregate demand is less than the aggregate demand required to maintain full employment equilibrium. मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. आप देखिए, जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए वो EYF है, मगर जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो GYF है. तो एक्चुअल यहाँ पर दोनों कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे भाई हाउ मच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इट इज EG. दिस EG इज डिफ्लेशनरी गैप. क्लियर? EG is the deflationary gap. The same thing I have written here. When you theoretically when you detect the deflationary gap or deficient demand, so you detect the two types of AD at full employment level minus actual one. Here AD required to maintain full employment equilibrium minus actual AD. In diagram, aggregate demand required to establish full employment equilibrium is EYF. Same thing I have written here. Aggregate demand required to establish full employment equilibrium is EYF. You see actual aggregate demand is GYF. See here, actual aggregate demand GYF. So deflationary gap or deficient demand is easy. It is aggregate demand required to achieve full employment level minus actual aggregate demand. Clear? So by easy, actual aggregate demand is less than the aggregate demand required to achieve full employment equilibrium. Clear? So EG is the deflationary gap. So causes, कारण क्या है? Causes of deficient demand और deflationary gap. मैं बार बार आपको एक आइडिया दिया था कि आप एग्रीगेट डिमांड्स का कंपोनेंट्स को चले जाओ. We know that aggregate demand is the planned expenditure incurred by the four sectors: household sector, farm sector, government sector and external sector. But here actually we are discussing two sector model. Okay, here planned expenditure incurred by the household sector and farm sector. For household sector it is household consumption expenditure, and in case of farm sector it is private investment expenditure. So causes of deficient demand or deflationary gap. First one, decrease in household consumption expenditure. Very common. जब household consumption expenditure कम होगा तब deficient demand arise होता है. Similarly, next one, in case of farm sector, when farm sector reduce its investment expenditure. We know that always farm sector incur expenditure on capital goods, machines, tools, equipments, purchasing raw materials. So इस एक्सपेंडिचर में कम होगा. देन जाएंगे गवर्नमेंट. डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स. मैं बार बार बोल चुका हूं, गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स टू मीट द कॉमन नीड्स ऑफ द पीपल, टू फुलफिल द कलेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ द पीपल. तो कलेक्टिव इट मीन्स इन दिस केस in my previous video already I have discussed government incur expenditure to develop flyovers, bridges, the construction of hospital building, construction of educational buildings, construction of roads, construction of rail lines, construction of railway platform, construction of dams. Clear? So many projects simultaneously government developing. So in this case actually when government reduce, government curb its expenditure on public welfare programs, then deficient demand or deflationary gap is arising. Next one, fall in exports. Fall in exports क्यों है? क्योंकि in comparison prices of domestic goods are higher one compared to prices of foreign goods.
जो हमारा डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस ज़्यादा है, हम फॉरेन गुड्स का प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसीलिए हमारा गुड्स के ऊपर जो डिमांड है फॉरेन मार्केट में कम है. सो प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स are higher one in comparison to the foreign goods. Due to this, demand on domestic goods in foreign market is less. So due to this also aggregate demand decreases. Okay, because demand on domestic goods in international market or in foreign market is less. Reason is prices of domestic goods are high one. Prices of domestic goods are dearer one. Fall in exports, it is another reason for deficient demand or deflationary gap. Then rise in imports, obviously, when foreign goods are cheaper for us in comparison to the domestic goods. जब हमारे लिए फॉरेन गुड्स चीपर होगा, हमारा डोमेस्टिक गुड्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आवर रेसिडेंट्स दे वांट टू इनकर मोर एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, सो इट इज राइज इन इंपोर्ट्स. ओके, रीजन इज when residents they incur more expenditure on foreign goods in our domestic market, because foreign goods are cheaper one in comparison to the domestic goods. So rise in imports, fall in exports and rise in imports, it is related to the external sector. Okay, these are the reasons of causes of deficient demand or deflationary gap. Then impact, मैं बार बार बोला था impact आएगा तो employment, output और prices के ऊपर हम देखेंगे. Impact on employment, we know that due to deficient aggregate demand, investment, जब aggregate demand कम होगा, the producers investors क्या करेंगे, वो aggregate demand, वो investment को कम कर देंगे. investment को कम करने से ऑटोमेटिकली हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगा, और वो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली बेसिकली प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. So when aggregate, due to deficient aggregate demand, when aggregate demand decreases, automatically producers and investors reduce the investment, and the level of output decreases and unemployment is arising, and basically involuntary unemployment arising in the economy. Okay, clear. Next one, impact on output, same thing, due to decrease in aggregate demand or due to deficient aggregate demand, producers and investors reduce the investment level, and due to this output level decreases, level of output decreases. Then impact on prices, due to deficient demand, जब एग्रीगेट डिमांड कम है तब प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स क्या करेंगे ना, वो प्राइस को कम कर देंगे. ड्यू टू डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस. प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस बिकॉज ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड नहीं है. सो ड्यू टू दिस डिफ्लेशनरी सिचुएशन जनरेट इन द इकोनॉमी. हम जानते हैं कि डिफ्लेशनरी सिचुएशन में कॉन्टिन्यूसली प्राइस लेवल कम होता है. तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई. यहाँ पर मैं बोला कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो प्लांट प्रोडक्शन है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, मगर उतना एग्रीगेट डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड उससे कम है. ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स हैव प्लान्ड टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन दैट. So due to excess supply, then automatically producers and investors reduce the price level, and continuously price level decreases due to this deflationary situation generate in the economy. फिर हम आएंगे उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. So my friends, before discussing control of deficient demand, again just I request you, please you see my video till the end. Definitely you can get some good informations, and also you can get complete information about this topic. और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑसिस सरिकोमनिया, एंड ऑल्सो कमेंट मी. चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ये डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करेंगे. कंट्रोल, कंबाट, करेक्ट सेम थिंग है. पहले हम दो मेजर्स है, फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स. पहले हम फिजिकल मेजर्स को जाएंगे. फिजिकल मेजर्स में बोला था बेसिकली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, फिजिकल मेजर्स में फर्स्ट टैक्सेशन आएगा. एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेशन, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स एंड रेट ऑफ जीएसटी. बेसिकली कॉर्पोरेशन टैक्स पेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस. ओके,
सो गवर्नमेंट रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स एंड रेट ऑफ जीएसटी, ये सब कम हो जाएगा। इनकम टैक्स रेट कम हो जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट कम हो जाएगा, जीएसटी का रेट कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ओके, हम जानते हैं कि जब इनकम टैक्स कम होगा ऑटोमेटिकली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा पर्सनल इनकम से इनकम टैक्स माइनस होता है, तब हमको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिलता है, जिसको हम एक पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और एक पार्ट सेव करते हैं। सो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज आवर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस। ड्यू टू डिक्रीज इन रेट ऑफ जीएसटी ऑल्सो prices of goods and services are cheaper one, so due to this aggregate demand also increases. Similarly, corporation tax, when corporation tax decreases, then again producers and investors they want to put more money in their business, so due to this also aggregate demand increases. तो आपको याद रखना है डेफिशिएंट डिमांड और रिप्लेसमेंट गैप को कंट्रोल करने के लिए हमको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। टू कंट्रोल और कम्बाट और करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड और रिप्लेसमेंट गैप, the main solution is the main it means cure is to increase the aggregate demand. So automatically due to reduction of tax rate aggregate demand increases and again deficient demand corrected or replacement gap eliminated. Similarly, in case of public expenditure, at the time of deficient demand or replacement gap, government increase public expenditure on public welfare programs. जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन होगा, हॉस्पिटल बिल्डिंग होगा, एजुकेशनल बिल्डिंग होगा, फ्लाईओवर्स होगा, ब्रिजेस होगा, मेट्रो स्टेशन डेवलप होगा, रेलवे स्टेशन डेवलप होगा, रेलवे लाइंस डेवलप होगा, कहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप होगा, कहाँ पर पावर प्रोजेक्ट डेवलप होगा। सो इन डिफरेंट एक्टिविटीज गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर, बट गवर्नमेंट increase its expenditure. We know that when government increase its expenditure on public welfare programs, then automatically money reaching to the hand of the public. लोगों के हाथ में पैसा आएगा क्योंकि लोगों को काम मिलेगा। जो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करेगा वो लोगों के हाथ में आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज रिसिप्ट ऑफ द इनकम फॉर द पब्लिक। Clear? So due to this, when money reaching to the hand of the people, money supply increases and aggregate demand increases, then again deficient demand is corrected and deflationary gap eliminated. Next one, in case of public debt, at the time of deficient demand or deflationary gap, government avoid public borrowing. मैं बार बार बता कैसे गवर्नमेंट अवॉइड करेगा। जो पोस्ट ऑफिस होता है, बैंक में डिफरेंट स्कीम्स होता है। जैसे मैं बोलता हूँ एक बढ़िया स्कीम है जो बैंकिंग सेक्टर में प्रोविडेंट फंड, जानबूझकर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा। तब जो एम्प्लॉयज़ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और जो प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ है, वो प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में हम जो इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए करते हैं, 15 साल के बाद वो पैसा हमको विथड्रॉ करना है। तो अभी जो हम प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ वन टाइप ऑफ बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा, तो ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पेंशन स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, ऐसा स्कीम लाएगा जो बैंकिंग सेक्टर में पेंशन स्कीम होता है। जैसे हम रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन स्टार्ट होता है, वो स्कीम में ऐसा कुछ चेंज आएगा, गवर्नमेंट जो चेंज करेगा, तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा पैसा पेंशन फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पोस्टल में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जो 5 ईयर्स में उसका 50, जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उसका 50% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो नाउ सपोज इफ यू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज ऑन NSC बॉन्ड, नेशनल सर्टिफिकेट बॉन्ड, देन आफ्टर 5 ईयर्स द डिपोजिटर विल रिसीव 15,000. Now we invested 10,000. After 5 years, 50% of deposited amount, okay, 50% of invested amount, it means the depositor would receive in the form of interest. So वो जो 5 साल में हमको 50% मिल रहा है, वो 6 साल हो जाएगा। तो ऐसे क्या करेगा ना, गवर्नमेंट अवॉइड करेगा टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक इन डिफरेंट वेज। पब्लिक डिपोजिट देयर फंड्स, okay, in LIC, in mutual funds, pension policies of SBI, in postal different type of schemes, because in future people, the depositors will get benefit. So it is जो हम deposit करेंगे now, it means deposits of the public, it is the borrowing of the government from the public.
तो इसी समय क्या करेगा गवर्नमेंट, अवॉइड करेगा, गवर्नमेंट अवॉइड पब्लिक बोरोइंग। सो ड्यू टू दिस मोर मनी लेफ्ट विद द पब्लिक, ज्यादा पैसा बच जाएगा लोगों के हाथ। तो इसमें क्या होगा ना, मनी सप्लाई इंक्रीजेस एंड लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सो डेफिशिएंट डिमांड इज करेक्टेड और डिफ्लेशनरी गैप एलिमिनेटेड। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग में बार बार बोला था, डेफिसिट फाइनेंसिंग मेरा प्रीवियस वीडियो में बोला था, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट सिक्योरिटीज। So when government borrow from the RBI against securities, RBI printing currency notes, printing new currency notes and lending to the government. Then government expenditure this amount and again this money reaching to the people and money supply increases due to this aggregate demand increases and inflationary situation generated in the economy. So deficit financing के वजह से inflationary situation create होता है। सो इसी समय क्या होगा ना, गवर्नमेंट बोरो मोर फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट ज्यादा फंड्स बोरो करेगा आरबीआई से अगेंस्ट सिक्योरिटीज। सो आरबीआई प्रिंटिंग करेंसी नोट्स एंड लेंडिंग टू द गवर्नमेंट एंड देन गवर्नमेंट यूज दीज फंड्स फॉर एक्सपेंडिचर पर्पजेस। क्लियर? जब गवर्नमेंट बोरो करेगा आरबीआई से और गवर्नमेंट यूज इट to incur expenditure on public welfare programs. So due to again more money reaching to the hand of the public, लोगों के हाथ में जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। कि मनी सप्लाई क्या है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट बोरो करेगा और उसको खर्च करेगा और लोगों के हाथ में जाएगा वो पैसा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा एंड डेफिशिएंट डिमांड करेक्टेड और डिफ्लेशनरी गैप एलिमिनेटेड। ओके, so all these are fiscal measures: taxation, public expenditure, public borrowing and deficit financing. These are the four measures, fiscal measures implemented by the government to control deficient demand or deflationary gap. Next one हम जाएंगे monetary measures. In case of monetary measures first जाएंगे bank rate. We know that bank rate is the rate at which RBI lending to the commercial banks for longer period of time. जिस रेट में RBI कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, आरबीआई रिड्यूस द बैंक रेट। व्हेन आरबीआई रिड्यूस द बैंक रेट देन बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई चीपर वन फॉर द कमर्शियल बैंक्स। जब बैंक रेट कम हो जाएगा तब कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से बोरो करना वो सस्ता हो जाएगा। इट मीन्स बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई इज चीपर वन फॉर द कमर्शियल बैंक्स। जब चिपर हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स बोरो मोर फंड्स फ्रॉम द आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स ज्यादा बोरो करेंगे। सो ड्यू टू दिस एक्सेस रिजर्व इन द कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेस, कमर्शियल बैंक का एक्सेस रिजर्व बढ़ जाएगा। एक्सेस रिजर्व जब बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स वो एक्सेस रिजर्व को कैसे यूज करेंगे ना, लेंडिंग टू द पब्लिक at lower rate of interest. When excess reserve of the commercial bank increases, then commercial banks lending to the public at low rate of interest. Commercial banks क्या करेंगे? Commercial bank use the excess reserve, okay, for lending purposes. It means lending to the public at low rate of interest. So public borrow more funds from the commercial banks because now commercial banks lending to the public at less rate of interest. So due to less rate of interest, public borrow more funds from the commercial banks. So due to this, money supply in the economy increases. It leads to increase in aggregate demand and deficient demand corrected or deflationary gap eliminated. Second one, next monetary measure, reverse repo rate. Reverse repo rate, it is the rate at which RBI borrow from the commercial banks for short period of time. But it is the ये repo rate का just opposite है. It is the rate at which commercial banks parking their surplus funds in RBI. But it is the rate at which commercial banks lending to the RBI for short period of time. तो different definitions है. It is the rate at which commercial banks parking their surplus funds in RBI for short period of time. It is the rate at which commercial banks lending to the RBI for short period of time. Okay, जिस दौर में कमर्शियल बैंक्स उसका सरप्लस फंड्स को पार्क करता है आरबीआई में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जिस दौर में यही है, सेम थिंग है, कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग टू द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग करता है आरबीआई को और उसका सरप्लस फंड्स को आरबीआई में पार्किंग करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सेम थिंग है. तो एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप आरबीआई रिड्यूस द रिवर्स रिपो रेट. आरबीआई रिवर्स रिपो रेट को रिड्यूस कर देता है.
तब जब रिवर्स रिपो रेट कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स प्रीफर टू लेंड टू द पब्लिक रादर देन पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स इन आरबीआई। इसी समय कमर्शियल बैंक्स नहीं चाहेंगे कि उनका सरप्लस फंड्स को वो आरबीआई में पार्क करे, क्योंकि अभी उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो दो चीज देखते हैं कि हम आरबीआई में पार्किंग करेंगे ना पब्लिक को लेंड करेंगे। तो दे प्रीफर लेंडिंग टू द पब्लिक रादर देन पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स इन आरबीआई, क्योंकि अभी आरबीआई को वो लेंड करेंगे और सेम थिंग है, और उनका सरप्लस फंड्स को पार्किंग करेंगे, उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए वो पब्लिक को ज्यादा लेंड करने के लिए चाहेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स प्रीफर टू लेंड टू द पब्लिक रादर देन पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स इन आरबीआई। सो ड्यू टू दिस, when commercial banks basically they prefer to lend to the public, then automatically commercial banks lending to the public at low rate of interest, क्योंकि वो अभी उनका सरप्लस फंड्स को पार्किंग नहीं किया आरबीआई में, तो उनका एक्सेस रिजर्व होगा। तो कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग टू द पब्लिक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन पब्लिक borrow more funds from the commercial banks. The same thing, it increases money supply in the economy, it leads to increase in aggregate demand, and deficient demand is corrected or deflationary gap eliminated. Next, open market operations. In case of open market operations, it is buying and selling securities by RBI to and from public and commercial banks in open market. आरबीआई क्या करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में? सिक्योरिटीज को बेचता है, किसको? पब्लिक को, कमर्शियल बैंक को। और कभी कभी क्या करता है ना, सिक्योरिटीज को परचेज करता है पब्लिक से और कमर्शियल बैंक से। मगर अभी क्या होगा ना, एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, आरबीआई परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई अभी खरीदेगा सिक्योरिटीज को, किससे? पब्लिक से एंड कमर्शियल बैंक से। इट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द आरबीआई टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। अभी मनी ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज को, अभी क्या होगा, मनी ट्रांसफर हो जाएगा किससे ना, आरबीआई से पब्लिक को और कमर्शियल बैंक्स को। तो अभी आरबीआई पब्लिक से परचेज करेगा, तो आरबीआई पेड टू द पब्लिक, देन ऑल द पब्लिक हैविंग डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स, वो कमर्शियल बैंक्स में उनका डिपॉजिट है, वो पैसा डिपॉजिट करेंगे, वो उनका घर में तो पैसा नहीं रखेंगे ना। तो इसके वजह से क्या होगा, इफ आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक और आरबीआई परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, दोनों केस में कमर्शियल बैंक का एक्सेस रिजर्व बढ़ेगा, क्योंकि आरबीआई पेड करेगा पब्लिक को, तो पब्लिक उसको कमर्शियल बैंक्स में रखेगा, और आरबीआई कमर्शियल बैंक से परचेज करेगा तो कमर्शियल बैंक वो पेड करेगा। सो ड्यू टू दिस एक्सेस रिजर्व इन द कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेस, देन सेम थिंग, व्हेन एक्सेस रिजर्व इन द कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेस, कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग टू द पब्लिक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, public borrow more funds from the commercial banks, it increases money supply and leads to increase in aggregate demand and deficient demand corrected और deflationary gap eliminated। इसको बार बार मैं प्रीवियस केस में बता चुका हूं। फिर अभी जाएंगे लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। we know that components of LRR कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दो प्रकार का रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक्स का, एक रिजर्व वो आरबीआई में रखता है जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, और एक रिजर्व खुद के पास रखता है उसको एसएलआर बोलते हैं। सीआरआर क्या है ना, इट इज द सर्टेन परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स कीप बाय द कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। जो सीआरआर होता है, एक सर्टेन परसेंटेज कौन डिसाइड करता है ना, सर्टेन परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करता है। सो सर्टेन परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स कीप बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। तो ये सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है, वो एक कमर्शियल बैंक का रिजर्व आरबीआई में रहता है। It is mandatory for the commercial banks to maintain reserve in the RBI. Another reserve जो है statutory liquidity ratio, वो खुद के पास रखता है। तो SLR क्या है ना, certain percentage of public deposits kept by the commercial banks with itself in the form of liquid assets as a reserve। यहाँ पर जो रिजर्व है वो भी SLR को भी RBI डिसाइड करता है। तो यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट्स का, जैसे आरबीआई जो जितना परसेंटेज डिक्लेयर किया, तो पब्लिक डिपॉजिट्स का उतना परसेंटेज कमर्शियल बैंक खुद के पास रखेगा लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट्स क्या होता है ना, कुछ पार्ट कैश में, कुछ पार्ट गोल्ड में, कुछ पार्ट सिक्योरिटीज में, और कुछ पार्ट वो अदर बैंक्स में डिपॉजिट के आकार में रख सकता है। इट मीन्स लिक्विड एसेट्स मीन्स कमर्शियल बैंक्स कीप सर्टेन पार्ट ऑफ द रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, or in the form of deposits in other banks. At the time of deficient demand or deflationary gap, RBI reduce the CRR and SLR। जब ये deficient demand और deflationary gap होता है,
उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, दोनों रिजर्व को कम कर देगा, सीआरआर को कम हो जाएगा, एसएलआर कम हो जाएगा। दोनों रिजर्व के बाद जो कमर्शियल बैंक में रिजर्व रहता है उसको हम एक्सेस रिजर्व बोलते हैं, उसी को कमर्शियल बैंक लेंडिंग करता है पब्लिक को। तो अभी ये दो रिजर्व कम हो जाएगा। वी नो दैट आफ्टर मेंटेनिंग टू रिजर्व्स, excess reserve generated in the commercial banks, and commercial banks use the excess reserves for lending purposes, for lending to the public। तो अभी दोनों रिजर्व कम हो जाएगा। जब दोनों रिजर्व कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली द एक्सेस रिजर्व इन द कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेस। जब एक्सेस रिजर्व बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग टू द पब्लिक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन पब्लिक बोरो मोर फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, इट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, सो इट करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन गैप एलिमिनेटेड और डेफिशिएंट डिमांड इज करेक्टेड। लास्ट वन हम देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। जो फर्स्ट गया वो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, टू कंट्रोल द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड लोन सैंक्शनड अगेंस्ट इट। सपोज एक बिजनेसमैन एक सिक्योरिटी रखता है बैंक में, सपोज उसका मार्केट वैल्यू है 1 लाख, मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, तो इसी समय उसको कितना लोन बैंक देगा ना, 80,000 लोन देगा, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है वो 1 लाख है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, तो उसको बैंक कितना लोन देगा, 80,000 लोन देगा। मगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द बिजनेसमैन पेड 1 लाख, माने मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ऑलवेज मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा ना, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। और इस ये एट द टाइम ऑफ, सो सेम डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी लोन सैंक्शन अगेंस्ट इट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी क्या है और उसके अगेंस्ट में लोन कितना सैंक्शन होता है, उसका डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड, आरबीआई रिड्यूस द मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देने से क्या है, मैं जो एग्जांपल अभी दिया, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी 1 लाख था। डिपॉजिट जो बिजनेसमैन ने डिपॉजिट किया एक सिक्योरिटी जिसका मार्केट वैल्यू 1 लाख है और मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% था, अभी उसको आरबीआई 10% कर दिया। पहले उसको 80,000 लोन मिलता था बिजनेसमैन को, मगर अभी 10% होने से वही मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी 1 लाख है, नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 10%, तो बैंक लेंड 90,000 टू द बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन को 90,000 मिलेगा, मगर वो कितना पेड करेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वही 1 लाख। तो अभी 10,000 वो इंटरेस्ट दे रहा है, पहले वो 20,000 दे रहा था वही सिक्योरिटी के ऊपर। तो इट मीन्स ऑन द सेम सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स लेंड मोर फंड्स टू द डेप्टर्स और बॉयर्स। मैं अभी बताया पहले 20% था, उसको 80,000 लोन मिलता था जब मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी 1 लाख था। अभी वही मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी सेम है, उसको अभी 90,000 लोन मिल रहा है, और इसके वजह से एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा ना, मैच्योरिटी अमाउंट वो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी होगा। तो पहले वो 20,000 इंटरेस्ट देता था, अभी 10,000 दिया। तो इट मीन्स ऑन द सेम सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स लेंड मोर फंड्स टू द डेप्टर्स और बॉयर्स। सो ऑटोमेटिकली इन दिस केस एक्चुअली it means producers and investors, they want to keep securities and want to borrow funds from the commercial banks. So automatically due to this money supply in the economy increases and it leads to increase in aggregate demand, so deficient demand is corrected or deflationary gap eliminated. यहाँ पर क्वेश्चन आता है, suppose what is inflationary gap, how can it be controlled by bank rate, how can it be controlled by reverse repo rate, how can it be controlled by legal reserve ratio, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, मेंशन 2 मेजर्स टू कंट्रोल और कम्बाट इन्फ्लेशनरी गैप। 2 मेजर्स, आप कोई भी मेजर्स दे सकते हो, जैसे मॉनेटरी मेजर्स में कोई भी दे सकते हो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट कोई भी दे सकते हो, और फिस्कल मेजर्स भी दे सकते हो। सपोज क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी गैप or deficient demand through reverse repo rate. What is deflationary gap? How to control deflationary gap or deficient demand through legal reserve ratio? ऐसे क्वेश्चन आएगा। What is deficient demand? How to control deficient demand through monetary measures, through fiscal measures? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में होता है। तो मैं अच्छे से डिस्कशन किया। तो माय फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और उसको, मेरा चैनल असित सरी कुमानिया, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। माई सेल्फ असित कुमार पटनायक, आगे मैं अच्छा वीडियो लाऊंगा।
तो लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में देखना है, मुझे और एक अच्छा वीडियो लाना है। थैंक यू।